Children, welcome to your maths video class. Children, I hope you are enjoying the classes. Children, you know that in maths we are doing warm-up exercises. That is recapitulation. Children, we have not yet started the first unit, but we are doing the recapitulation section of maths book that is called warm-up, and it is given on page number 9 onwards. पेज नंबर 9 से ये स्टार्ट हो रहा है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इस एक्सरसाइज बुक का, बिकॉज इन दिस एक्सरसाइज इन दिस यूनिट यू आर रिवाइजिंग व्हाट यू स्टडीड इन ग्रेड 1. आपने ग्रेड 1 में जो पढ़ा है वो आपको अभी तक कितना याद है, आपको कितना आ रहा है, वो इससे इस एक्सरसाइज में पता चलेगा. मैं आपको एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर ये आपको पहले से आता है तो आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो रहा है. अगर आपने नहीं पढ़ा था या कुछ ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया था, वो आप फिर से उसे समझ लेंगे. अब तक हमने ये जो वार्म अप एक्सरसाइज है इसमें हमने काउंटिंग किया है, फॉरवर्ड काउंटिंग. लेट मी राइट व्हाट वी हैव कंप्लीटेड. वी हैव डन है ना. फिर हमने प्लेसेस किया है, वंस एंड टेंस. देन वी हैव डन एक्सपेंडेड फॉर्म. ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म. Then we have done what comes before. This we have done. If you have seen the videos, previous videos, you must be knowing that we have done these. Then we have done what comes after. Then we have done what comes between. What comes this we have done. Then we have done increasing order. Then we have done decreasing order. All these we have already done, है ना. काउंटिंग भी किया है, प्लेसेस वंस एंड टेंस किया है. Then expanded form, short form, what comes before, after, between, increasing order, decreasing order. These we have already done in the previous video. We have also done a few more things. Let me write those also. We have also done what smallest number and biggest number. Smallest number, biggest number, or you can say largest number. This also we have done. Then what else? Let me see. And then we have done putting greater than and smaller than symbol. This greater than and smaller than symbol. This also we have done. Then we have done adding on number lines. Adding on number lines we have done. Subtraction on underlines. Subtracting on subtracting on number lines.
This also we have done. We have started addition. Normal जो add करते हैं 2-digit number. This we have started in the previous video and we have done some sums. कुछ एडिशन के सम्स हमने किए थे. 2-digit एडिशन हमने स्टार्ट किया था और कुछ हम कर चुके हैं. इसमें कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. इतना हम ऑलरेडी कर चुके हैं. टिल हियर वी हैव ऑलरेडी completed. So few more questions are left in this warm up exercise. There are total I think 21 questions and we are on 15th. हम 15th पर हैं और 21 questions हैं. तो we will be completing within 2-3 videos. We will complete this and then we will start the first unit of grade 2. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐड वाला. Let's do. We have done total 5 questions. 5 questions हम कर चुके हैं. कुछ और questions बचे हैं. Let's do that. It is F वाला हम करेंगे. Till E we have done. It is 26. Let me write warm up. Yeah, the question is find the sum. Find the sum. Okay. 26 plus 10. Question is 26 plus 10. 2 6 and 1 0. 2-digit number है हमारा. इसको हम ऐड कर रहे हैं. चलिए अब हम क्या करेंगे इसमें ध्यान से देख लेते हैं. 6 और 0 को पहले प्लस करेंगे विच इज़ वेरी इजी. 6 के साथ आपको 0 ऐड करना है. मतलब 0 मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है अनलेस इट इज़ विद सम अदर नंबर. सिर्फ अकेले 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है. पर अगर वो किसी नंबर के साथ होता है, कोई नंबर है और उसके राइट हैंड साइड में होता है तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है. तो यहाँ पर हम अगर अकेले 0 को लेते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है तो 6 plus 0 will be 6. Here 2 plus 1. This is also easy. You have 2 in your hand and one more is added to that. So total it will be 3. Very good. Answer is 36. I'm sure you have done these types of questions in class 1. Class 1 में आपने ये definitely किया हुआ है. Then है हमारा 61 plus 17. 61 plus 17. इसको ऐड कर ले. Here we have 2 numbers again. Now children, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोगों की आदत होती है कि जब भी कोई नंबर होता है या इधर यू ड्रॉ लाइन्स और यू काउंट इट ऑन फिंगर्स, है ना. या तो लाइनें खींचते हो कॉपी में या फिर आप उंगलियों पे ऐसे काउंट करते हो. तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपके पास 2 नंबर्स होंगे ऐसे तो क्या करना है, जो बड़ा वाला नंबर है उसको कहाँ रखना है, माइंड में. बड़ा नंबर मतलब साइज में बड़ा नहीं, वैल्यू में. ठीक है, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, 2 नंबर है या 3 नंबर है, जो भी आपको ऐड करना है. हियर यू हैव टू ऐड 2 नंबर्स. तो दोनों नंबर में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, जो लार्जर नंबर है, उसको आप माइंड में रख लीजिए. जो स्मॉलर नंबर है उसको फिंगर पे ले लीजिए. ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे 7 और 1 है ना. इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है,
7 है, गुड। तो 7 को आप माइंड में रख लीजिए, ओके। कीप 7 इन माइंड एंड टेक 1 ऑन फिंगर, फिंगर पे उसको ले लीजिए, ठीक है। मैंने उसको फिंगर पर ले लिया। 7 कहाँ पर है? माइंड में है। तो जो नंबर माइंड में है उसके आगे से गिनना है। अब 7 माइंड में है तो 7 के आगे क्या आएगा? 8। तो हमारा टोटल हो गया 8, बस। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे 7 लाइन ड्रॉ करना, फिर 1 लाइन ड्रॉ करना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप 7 लाइन खींच रहे हो, फिर 1 लाइन खींच रहे हो, ये सब करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कीप द बिगर नंबर इन माइंड एंड स्मॉलर नंबर ऑन फिंगर। ऐड करने की इधर देख लेते हैं, 6 and 1 है। हाँ, तो आपके लिए मेरे ख्याल से तो ईजी है क्योंकि आप 1 में पढ़ चुके हैं। स्टिल आई विल बी रिपीटिंग दिस, आपको समझाऊंगी मैं। 6 और 1 में से बड़ा कौन सा है? यस, 6 इज द ग्रेटर नंबर। तो 6 को आप रखिए माइंड में और 1 को रखिए फिंगर पे। अब जो माइंड में नंबर है यानी 6, उसके आगे से गिनिए। 6 के आगे क्या आता है? 7, हो गया। यू हैव टू राइट हियर 7, गॉट इट। देख लेते हैं एक 24 and 40। Now you can see here we have 4 and 4, दो नंबर है और दोनों ही सेम है, ठीक है। यहाँ ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है। अब इसमें ग्रेटर नंबर कैसे पता करेंगे? नहीं पता करेंगे क्योंकि दोनों ही सेम है। तो 2 4 है। जब भी ऐसा हो, जब दोनों नंबर सेम है तो कोई भी एक नंबर को आप माइंड में रख लो। जब दोनों नंबर सेम होते हैं, जिन दो नंबर को आप ऐड कर रहे हो वो दोनों नंबर अगर सेम है, ठीक है, जिन दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो वो दोनों नंबर अगर सेम है तो किसी एक नंबर को आप माइंड में रख लो दोनों में से। यहाँ 2 4 है, हमने एक 4 को माइंड में रख लिया, दूसरे 4 को हम फिंगर पे ले लेते हैं, ठीक है। अब माइंड में कितना है? 4 है। अब उसके आगे से गिनेंगे। 4 है माइंड में, अब आगे से 5 6 7 8, 5 6 7 8, हो गया। 5 6 7 8, देखिए 4 है, 5 6 7 8, 4 के आगे से हमने गिना, सो राइट हियर 8। अगेन 2 + 3, 2 इन माइंड, 1 ऑन फिंगर। 2 में 1 मिला दीजिए, हो जाएगा कितना? 3। आंसर इज 38। तो ये हो गया आपका फाइंड द सम। अब नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया। आगे हम ऐड करेंगे, बहुत सारे एडिशन के क्वेश्चन अभी तो आने वाले हैं। ये तो आपका एक तरह का रिवीजन है ना। अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड, एक सेकेंड, फाइंड, दिस इज फाइंड द डिफरेंस। नो फाइंड दिस सम, आई हैव टू रब, ये जो ऊपर लिखा है क्योंकि हम सम वाला कर चुके हैं। नाउ वी विल बी डूइंग फाइंड द डिफरेंस। नाउ चिल्ड्रन, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है किसी चीज में कितना गैप है बताना। नॉर्मली डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस का क्या मतलब है? सब्ट्रैक्ट करना। डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, ठीक है। कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, क्या डिफरेंस है बोलते हैं। तो डिफरेंस इज सब्ट्रैक्शन इन मैथमेटिक्स। डिफरेंस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन। वी हैव टू subtract, okay. So we'll be doing question sums of subtraction, okay. First one is 77 minus 14. 77 minus 14, okay. 77 minus 14। अब ये साइन आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन का साइन है ना।
कैसे माइनस करना है। अब तक आप क्या करते थे, अब 7 लाइन ऐसे करते थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर क्या करते थे, उसमें से 4 कट करते थे, 1 2 3 4, कितना हमें मिला 1 2 3, ऐसे ही करते थे ना लाइन ड्रॉ करके। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कैसे करते हैं। हो सकता है आपको ये तरीका पता हो, आप में से कुछ बच्चे वो करते भी होंगे। इसमें क्या करना है दूसरे तरीके में कि आपको जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 4 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो आप 4 के आगे से काउंटिंग शुरू करेंगे till you reach the number from which you have to subtract. You are getting? जिस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर के आगे से काउंटिंग शुरू करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग। और कब तक करेंगे, जब तक आप उस नंबर पे पहुंच जाए जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। करके देखें, 4 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 के आगे से गिनिए, 4 के आगे से गिनिए, 5 6 7 तक ही गिनेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है। कितनी लाइन आई हमारे पास, 3, तो आंसर 3 आया, है ना। लाइन नहीं ड्रॉ करना है तो फिंगर पे करेंगे, 4 है उसके आगे से गिनिए, 5 6 7, कितनी उंगलियां हैं, 3। गेटिंग द पॉइंट। जिस नंबर को माइनस करना है उसके आगे से काउंटिंग करेंगे, कहाँ तक करेंगे, जिस नंबर में से माइनस करना है वहां तक पहुंचने तक, ठीक है। और देखेंगे हमारे कितने नंबर्स हैं। 4 हमने स्टार्ट, 4 है, 4 के आगे से हमने गिना था 5 6 और 7, कितनी उंगलियां हैं हमारी, 3, तो हम लिखेंगे 3, जितने हमारे फिंगर्स आएंगे उतना हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 है, उस 7 में से माइनस करना है ना, 7 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 1, तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 के आगे से काउंट करेंगे, 1 माइनस करना है तो 1 के आगे से काउंट करेंगे, कहाँ तक, 7 तक। चलिए करते हैं, 1 के आगे क्या आता है, 2 3 4 5 6 7, कितनी उंगलियां हैं, 5 + 1 6, है ना। फिर से करें, 1 के आगे से गिनिए, 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 तक। क्यों? क्योंकि ये हमारा 7 है इसलिए, हमेशा 7 तक नहीं जाना है क्योंकि यह 7 है इसलिए। अब काउंट करिए कितनी लाइन्स है आपकी, 1 2 3 4 5 6, सो विल राइट हियर 6। समझ में आया? चलिए, और अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। और ले लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 68 - 23। चलिए, इसको भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया। 3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, किस में से करना है, 8 में से, ठीक है। 3 को हमें माइनस करना है और किस में से करना है, 8 में से हमें माइनस करना है 3 को। गॉट इट? तो क्या करना है, 3 के आगे से गिनेंगे, जिसको माइनस करना है उसी के आगे से गिनेंगे, ठीक है। तो 3 को माइनस करना है तो 3 के आगे से गिनेंगे, कहाँ तक गिनेंगे, जब तक हम 8 पर पहुंच जाएंगे तब तक, ठीक है। चलिए गिनना शुरू करें, 3 के आगे से स्टार्ट करते हैं, 4 5 6 7 और 8। ऐसे अगर मेरी उंगलियां मुड़ी हुई दिख रही तो फिर से करते हैं, 3 के बाद 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 5, है ना। 3 के आगे से 4 5 6 7 8, कितनी लाइन्स हैं ये, 5, सो विल राइट हियर 5। अब आपको 8 लाइन्स ड्रॉ करके फिर उसमें से 3 काटने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कितना है, 6 है, उसमें से 2 माइनस करना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, 2 के आगे से काउंटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 के आगे से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग जब तक कि हम 6 पे पहुँच जाते हैं। 2 के आगे से गिनिए,
3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6, कितनी उंगलियां हैं? 4. विल राइट हियर 4, ठीक है। आंसर क्या आया? 45, है ना इजी। टाइम भी बचेगा आपका, आपको बहुत सारे लाइंस नहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी, कट नहीं करना पड़ेगा, और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 माइनस 43। चलिए अब हम करेंगे 3 को माइनस करेंगे 6 में से। 3 को माइनस करना है 6 में से, तो किसके आगे से काउंटिंग शुरू करेंगे हम? 3 के आगे से। वेरी गुड। कहाँ तक करेंगे? 6 तक, जब तक कि वो 6 पे नहीं पहुंच जाता, ठीक है। 3 के आगे से काउंटिंग शुरू करेंगे, और जब तक कि 6 पे नहीं पहुंच जाते तब तक हमको करना है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या आंसर आता है आपका। क्या आया? 3 के आगे से हमने गिना 4 5 6, कितना आया? 3। आपका भी 3 आया। चलिए अब 4 के आगे से गिनेंगे। क्यों? क्योंकि 4 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 4 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 9 में से। तो 4 के आगे से काउंटिंग शुरू करेंगे, और कब तक करेंगे काउंटिंग? जब तक कि हम 9 पर पहुंच नहीं जाते, क्योंकि 9 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमें 9 तक पहुंचना है। यहाँ 7 तक पहुंच रहे थे क्योंकि 7 में से करना है, यहाँ 8 और 6 तक पहुंच रहे थे क्योंकि इसमें से करना है। अब यहाँ पर 9 तक करेंगे क्योंकि 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो काउंटिंग शुरू करते हैं 4 के आगे से। 5 6 7 8 9, कितना आया? 5। गुड। और आंसर आ गया हमारा 53, ठीक है ना इजी। चलिए अभी हम कुछ और कर लेते हैं सम्स। और क्या है? 99 माइनस 12। 99 माइनस 12। अगेन सेम वही तरीके से हम इसको भी करेंगे। 2 है, 2 को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। किस में से करना है? 9 में से करना है ना। तो क्या करना है? काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? 2 के आगे से। यस, 2 के आगे से काउंटिंग शुरू करेंगे, और कहाँ तक गिनेंगे? जब तक कि 9 पर नहीं पहुंच जाते तब तक हमें काउंटिंग करना है। 2 के आगे से गिनिए। 3 4 5 6 7 8 9। फिंगर पे अगर करते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 5 6 7, 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। आंसर कितना आया? 7। अब 9 में से 1 माइनस करना है, तो अब हम 1 के आगे से काउंटिंग करेंगे जब तक कि हम 9 पर नहीं पहुंच जाते। 1 के आगे से गिनिए। 2 3 4 5 6 7 8 एंड मेरे हाथ में चौक है, इसे कहते हैं 9, ठीक है। फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 5 6 7 8, हो गया 8। आंसर है हमारा 87, है ना। टाइम बचता है ना इससे करने से। तो आप अब से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी ट्रिक से कीजिएगा, इसी मेथड से आप करेंगे, ठीक है। अभी और कर लेते हैं। नेक्स्ट इज 88 माइनस 41। 88 माइनस 41।
क्या करना है, 8 में से 1 माइनस करना है। 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8 में से, तो 1 के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 के आगे से 1 को निकाल देंगे। मतलब 8 में से आपको 1 को हटा देना है, रिमूव 1। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है हटाना, निकालना, रिमूव करना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मतलब अलग कर देना, किनारे कर देना, समझ में आया। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू टेक अवे समथिंग, ले लेना। हम 8 में से 1 को ले रहे हैं, हमने 1 ले लिया, अब 1 हमारे पास है। ऐसे अगर समझ सकते हैं तो अब ऐसे समझिए कि 8 में से हमें 1 लेना है, तो हमने 1 ले लिया, अब 1 हमारे पास है, वी हैव टेकन 1। तो 1 अब हमारे पास है, तो अब आगे 2 से गिनेंगे। 2 से गिनिए, 2 3 4 5 6 एंड 7 8। कितना हुआ, 5 6 7। कितना आंसर आया हमारा, 7। अब यहाँ 8 है और इसमें से हमें कितना ले लेना है, 4। हम वी हैव टू टेक 4 हमें इसमें से ले लेना है। लेट्स टेक 4। 8 में से हमने 4 लेके रख लिया, अब 4 हमारे पास है, 4 इज विद अस। अब 4 क्योंकि हमारे पास आ गया, तो अब 4 के आगे से गिनेंगे, 4 तो अब हमारे पास है, 4 के आगे से गिनेंगे 5 से, 5 6 7 8। कितना हो गया, 4। Right here 4. Answer is 47. Okay. Next is 79 minus 21. 79 minus 21 करें। चलिए, अगेन वी हैव टू टेक 1 फ्रॉम 9। 9 में से हमें 1 ले लेना है, चलिए ले लेते हैं। 1 को ले लीजिए, अब 1 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 1 नहीं है, 1 हम ले चुके हैं, तो उसके आगे से गिनेंगे। 1 नहीं है तो क्या है, 2 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितना हो गया, 5 6 7 8। ये हम यहाँ भी कर चुकी है वैसे, है ना, पर मैंने आपको ये शो नहीं किया क्योंकि आप यहाँ पे दोबारा कर रहे हैं, दोबारा प्रैक्टिस हो रही है। कॉपी थोड़ी ना करना है, हमें प्रैक्टिस करना है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पर 9 माइनस 1 था, यहाँ भी 9 माइनस 1 है, बट वी विल नॉट कॉपी, हम दोबारा से करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। चलिए, अब क्या है हमारा 7 माइनस 2। 7 में से आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अवे 2। आपको 2 लेना है फ्रॉम 7। ले लीजिए, 2 को निकाल दीजिए। चलो जी, बाहर आ जाओ 2। अब 2 नहीं है, 2 के आगे से गिनिए, 2 के आगे से 7 तक, 3 4 5 6 एंड 7। कितना हो गया, 5। गुड, हो गया हमारा 58। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको ये। चलिए, 2 क्वेश्चन है, इसको मैं इधर कर देती हूँ। 65 माइनस 32। Now here you have to take away 2 from 5। आपको 5 में से 2 ले लेना है, 5 में से 2 को निकाल देना, निकाल दीजिए। अब 2 नहीं है, 2 हम ले चुके हैं, अब 2 के आगे से गिनेंगे, 3 4 5 3। अब दूसरी जगह 6 में से 3 निकालना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, यू हैव टू टेक अवे 3 फ्रॉम 6। 3 को ले लीजिए, निकाल लीजिए। अब 3 नहीं है, हमने 3 को ले लिया, तो अब 3 के आगे से गिनेंगे, 3 के आगे 4 5 6 3। हो गया 33। नेक्स्ट है 98 माइनस 30।
8 में से अगेन आपको क्या निकालना है, 0। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि 0 का वैल्यू नहीं होता है, अगर वो अकेले है तो, अकेले 0 है तो उसका वैल्यू नहीं है। तो हम 8 में से 0 निकालेंगे तो हमें 8 ही मिलेगा। अब 9 में से 3 निकालना है, तो 3 के आगे से काउंट कीजिए, है ना, 3 को निकाल दीजिए, टेक 3 निकाल दीजिए बाहर, निकल गया। अब आगे गिरें, 4 5 6 7 एंड 8, 9 तक जाना है तो 9, फिर से गिरें 3 के आगे से, 4 5 6 7 8 एंड 9, कितना हुआ, 68। तो ये हमने किया फाइंड द डिफरेंसेस, दैट इज सब्ट्रैक्शन। दिस वी हैव कंप्लीटेड। और आज का वीडियो भी यहीं पे ओवर कर देते हैं, और अपने अगले वीडियो में हम जो बाकी की एक्सरसाइज है उसमें से कुछ एक्सरसाइज करेंगे। मैंने आपको बताया था इसमें हमारे 21 क्वेश्चंस हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल 16। तो अभी कुछ और हैं जो हमें करना है, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।